the land of India display the great physical variation. You know, so geologically, the peninsular plateau constitutes one of the ancient land masses on the Earth's surface. But you know, it is the most suitable and supported to be one of the most suitable land block. And to the physiography division, one, the Himalayas mountain and peninsular plateau, no, the northern plain are the most recently landform. Only two, one the Himalayas and second the northern plain are mostly recently the landform. So today your टॉपिक सो फिजियो डिवीजन ऑफ इंडिया का फिजिकल डिवीजन दे मेजर फिजियोग्राफीज ऑफ इंडिया नंबर वन द हिमालय माउंटेन नंबर टू द नॉर्दर्न प्लेन नंबर द पेनिनसुलर प्लेट्यू नंबर फोर इंडियन डेजर्ट नंबर फाइव द कोस्टल प्लेन एंड नंबर सिक्स the island group. So look at the outline map of India from north to east and northwest and western part of Rajasthan area and peninsular. So just the peninsular triangular landmass. So one eastern coast, western coast, eastern Ghat, western Ghat, northern plain and desert region area, the great Himalaya area and two islands. So number one physical features, number two physical feature and number three the peninsular plateau, number four coastal plain, number five eastern Ghat, number six in the Indian desert and number seven are India island group. So physiography and physical features, division, variation, relief features are just the derived formation. Now first discuss about the Himalayan mountain, the Great Wall of North. The Himalaya mountain बोलो या Great वॉल ऑफ नॉर्थ हम बोलते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ नॉर्थ, ठीक है, द ग्रेट वॉल ऑफ नॉर्थ ही बोलेंगे चूंकि इसलिए कि ये इंडिया का 37.6 सो जस्ट ये देख लीजिए ये रीजन एरिया द ग्रेट ये नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट रीजन एरिया देखिए स्ट्रेच. अब इसके फॉर द पामीर कोट नॉर्थ वेस्ट ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है. तो नॉर्थ वेस्ट द हिंदू कुश एंड नॉर्थ ईस्ट द कुल्लू माउंटेन. सो जस्ट द नॉर्दर्न पार्ट द नॉर्दर्न हिमालय टू स्ट्रेच across the northern plain in the eastern in the Arunachal Pradesh, in the Arunachal Pradesh कहता है. The mountain ranges in the west to east range mountain ranges run in the west to east direction. So west इंडिया का वेस्ट ये इधर सब देखिए नॉर्थ है ना, तो वेस्ट डायरेक्शन की ओर ये 3 पैरेलल रेंजेज है. यू नो द नेम ऑफ द 3 पैरेलल रेंजेज?
class? You know the name of the three parallel ranges of the Himalaya from the north to east, the Jammu and Kashmir, the J and K to Arunachal Pradesh. So if they stretch across the northern border. So geologically, the Himalaya mountain is a young and aesthetically the folded means so upper portion, just the formation, so up and down, fold Mordar is the name of the Mordar Parvat. So upper part is known as the anticline and syncline. So upper part, most the upper parts cover the huge of ice से कवर है. जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ये सो मेनी रेंजेज, कैलाश रेंज, काराकोरम रेंज, जस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, just the and three parallel ranges, so number most the upper parts, ये जो northern part of the ranges का है. जस्ट हिमालय का सबसे ऊपरी लेयर जो है जिसको लोग कहते हैं हिमाद्री, मीनिंग हिमाद्री जो हिम मीन्स बर्फ से वो ढका हुआ. सो अप मोस्ट द अपर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हिमालय इज कवर्ड द ह्यूज थिक ऑफ द आइस से कवर है. सेकेंड द थिन लेयर ऑफ आइस Himachal, and third is Shivalik. The three parallel Himalayan, and the Himalayas represents the lofty and one of the most raj माने कि उबड़ खाबर की जो है undulating topography कहते हैं, and barrier of the world जिसको लोग कहते हैं नॉर्थ वॉल ऑफ द इंडिया का बैरियर the world cup. Therefore, which covered the distance about 2,400 kilometers. है ना? But कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर to अरुणाचल प्रदेश 2,400 किलोमीटर, ये 2,400 किलोमीटर मगर वेट जो है ये वैरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कितना है 150 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर मीटर्स के तरफ 150 है ना. सो 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश एंड अल्टीट्यूडनल. डू यू नो द अल्टीट्यूडनल वेरिएशन? क्या है अल्टीट्यूडनल वेरिएशन? अल्टीट्यूडनल वेरिएशन एबव द सी लेवल हाइट. ये देखो ये वेरिएशन कर रहा है. देखो ये वेरिएशन क्योंकि ये फोल्ड माउंटेन है, इसको हम लोग जैसे ऐसे देखो. अब ये फोल्ड वाला कहता है कि अल्टीट्यूडनल वेरिएशन, ये अल्टीट्यूडनल. सो मोस्ट द स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर आ रहा है इस तरह से. देख लो इस तरह से कोनिकल शेप में चल रहे हैं है ना. ये हिमालय का इस तरह का स्ट्रक्चर देखिए. तो अल्टीट्यूडनल वेरिएशन ये वेरिएशन है, यहाँ का है, यहाँ का है. तो मोस्ट टॉप पॉइंट देखो, लोअर पॉइंट देखो, इसको कहते हैं सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन. तो अल्टीट्यूड्स यानी कि एबव द सी लेवल से हाइट में वेरिएशन. अगर मान लें यहाँ 400 मीटर फीट है तो ये 440 होगा, यहाँ पर 300 होगा, यहाँ पर 410 होगा, यहाँ पर 350. सो वेरिएशन वैसे क्योंकि वाई क्योंकि ये आपका हिमालय जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन है. वेरिएशन है द अल्टीट्यूडनल वेरिएशन एंड द ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ ऑफ द वेस्टर्न हाफ. द हिमालय कंसिस्ट देयर द थ्री पैरेलल रेंजेज हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक. आउटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लेसर हिमालय जिसको कहते हैं. सो नाउ द नंबर ऑफ द वैली लाइज इन द थ्री रेंजेज. वैली क्या है?
the new recently land formed by the the agent of river, कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, जस्कर है, लद्दाख वैली है, श्रीनगर वैली है. So just the shape of V shape in the both sides are easily eroded materials, breaking of rock and the erosional start due to in this stage the Himalayan region area, the rivers the young stage, and young stage में वो बहुत तेजी से erosional work start करते हैं. A number of the valley lies between the three ranges. The name of the ranges Himadri, Himachal and Shivalik. The three ranges between the ranges Himadri, Himachal and Shivalik ranges. The northernmost range I have already discussed. The northernmost the range जिसको ये रेंज कहते हैं हिमालय का, इसको लोग कैलाश कहते हैं, द ग्रेट कहते हैं. क्या कहते हैं? ग्रेट बोलो, इनर बोलो या हिमाद्री बोलो, सब एक ही है. द नॉर्दर्न मोस्ट एंड द लाइन बिटवीन द हिमाद्री और शिवालिक इधर ये आ गया आपका हिमाचल. द सेकेंड आपका हो गया द हिमाचल. इट इज मोस्ट द कंटिन्यूअस रेंजेज कंसिस्ट द लॉफ्टेड द पिक with the average height of the 6000 meters. वो द ग्रेट हिमालय का, चूँकि बहुत सारे लॉफ्टेड है ना, ऊंची चोटी है ना, जो यंग एंड फुल माउंटेन जिसको हम लोग कहते हैं एंटीक्लाइन अंडुलेटिंग टोपोग्राफी एंड कंटेंट ऑल द पैरेलल्स ऑफ हिमालय पिक द पिक्स है. लुक एट द मैप में देखोगे ना, द folds of the Great Himalaya are folds due to the volcanic eruption and the tectonic theory के कारण the young fold mountains कहते हैं. The Great Himalaya is a nature, particularly in the nature. The core of this part Himalaya is composed of the rock, the name of the granite. Granite is एग्जाम्पल ऑफ द रॉक किसका है? तो इग्नियस रॉक का है. इग्नियस रॉक सबसे पहले इग्नियस रॉक का है. इट इज, और यहाँ पर चूंकि इसलिए द ग्रेट वॉल जस्ट द कैरेक्टरिस्टिक बता रहे. सो नॉर्दर्न द ग्रेट है, इनर हिमालय कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं द हिमाद्री, क्योंकि ये ऊपर का जो देखते हैं नदर्न मोस्ट पार्ट जो है हिमालय का, वो कवर है द थिक द आइस से. जितने भी रिवर जो पेरिनियल रिवर जिसको कहते हैं, द फ्लो द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थ्रू आउट द ईयर, पेरिनियल नॉट पेरिनियल रिवर, क्योंकि इसलिए कि पूरा नॉर्दर्न पार्ट जो है वो कवर है, किससे कवर है? द आइस से. जैसे ही आइस मेल्ट करेगा वाटर का फॉर्मेशन होगा. तो सोर्स ऑफ वाटर इन द हिमालय रीजन एरिया. आई हैव देखो ड्रेनेज में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. तो रिवर, चाहे वो रिवर गंगा हो, रिवर इंडस हो या रिवर ब्रह्मपुत्र हो, इन सभी रिवर का ओरिजिन प्लेस जो है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हिमालय का एरिया, क्योंकि वो काफ़ी बर्फ से ढका हुआ है. और बहुत सारे द ट्रिब्यूट नंबर ऑफ द ग्लेशियर्स एंड द डिसेंडिंग होते रहता है, मेल्टिंग होते रहता है ना. बहुत सारे जो है सियाचिन ग्लेशियर है. तो यहाँ ये इनको हम लोग पार्ट्स में द माउंटेन ग्लेशियर अलकनंदा है, भागीरथी है, अलकापुरी ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है. नाउ सेकेंड जस्ट द बिलो द हिमाद्री, जस्ट बिलो द हिमाद्री, साउथ ऑफ हिमाद्री, ठीक है, उसको लोग हिमाचल कहते हैं. द रेंज लेइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री
form the most the Raj mountain. Raj is the undulating topography system and also known as the Himachal or the Lesser Himalaya. पहला को इसको हिमाद्री सब ग्रेट हिमालय कहते हैं, इनर हिमालय. हिमाद्री इक्वल टू इनर हिमालय. हिमाचल इक्वल टू बोलो लेसर हिमालय और शिवालिक जो आउटर हिमालय नाम नहीं है. द रेंजेज उसकी जो रेंज है, द रेंजेज आर मेनली कंपोज ऑफ द हाईली द compressed and the alternate rock and altitudinal variation between the 3,700 किलोमीटर टू 4,500 किलोमीटर. ये सेकेंड का है, हिमाद्री का, हिमाचल का. यहाँ पर जो वेरिएशन देखते हैं अल्टीट्यूडनल वेरिएशन ऊंचाई के अनुसार, तो सबसे आपका देखो वेरिएशन क्या है हिमाद्री का, दे अबाउट द 600 है ना, 600 या 6,000 किलोमीटर है. यहाँ देख रहे हैं किसमें आप देख रहे हो कि लेसर हिमालय में हिमाचल एरिया में जितने भी रेंजेज हैं वो काफ़ी रज्ड है, उबड़ खाबड़ है. इसको हम लोग कहते हैं अनडुलेटिंग टोपोग्राफी. कंपोज रॉक से कंपोज है. इसकी वेरिएशन जो देखेंगे, इसकी वेरिएशन अबाउट द 3,700 to 4,500 kilometer with. So the one of the most, the 50 kilometer with the Pir Panjal range, from the longest and the most important range. The फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न हिमालय का मैप देखोगे तो पीर पंजल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड अंडरलाइन कर लोगे द पीर पंजल सेकेंड हिमाचल रीजन एरिया में, द लेसर हिमालय में पीर पंजल रेंज द फेमस फॉर द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज. एंड धौलाधर and Mahabhat ranges are also the prominent ones, but the only one, the longest and most important range in the Lesser Himalaya, so known as the Pir Panjal range. This range consists the famous valley, बहुत सारे वैली है जो the new landform formed by the running water and the river, like a Kashmir Valley, Kangra Valley, Kullu Valley, they all located in the Kangra and Kullu in the Himachal Pradesh, है ना. And this region is named as it is the hill station. Location of the Mansoori है, नैनीताल है, रानी खेत है, are also near the states they are located. Now and third, south of the inner Himalaya is also known as the outer Himalaya, and other name of the Shivalik. They extend extends with देखते हैं over with the 10 to 50 kilometers, and altitudinal variation only the 900 to 1,100 kilometers. And these ranges are composed the unconsolidated sediments brought down by the river from the main Himalaya ranges located further the north. Sediments क्या है? Sediments कहते हैं जब हिमालय के द माउंटेनियस रीजन एरिया से जब कोई ब्रेकिंग और वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा या इरोजनल प्रोसेस के द्वारा द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स जो है वो इरोड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन, और जैसे ही वो सेडिमेंट्स कहाँ
ऑन द बैंक ऑफ रिवर या सी वेट के किनारे, जब वो सेडिमेंट्स हो जा रहा है तो ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है ना. द मेन हिमालय रेंजेज आर लोकेटेड फर्दर द नॉर्थ. द वैली आर कवर्ड विद द थिक द ग्रेवल्स एंड एल्यूमिनियम स्टोन पीसेस ऑफ. जो वैली है, जो लूज मेटेरियल्स है, रॉक्स है, वो जस्ट द ऑन द sediment on the bank of river with the help to carry the huge mud, silt, clay, gravel, all materials are easily eroded and with the help of the agent of gradation such as known as running water and is the river. Now अंडरलाइन करोगे द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक और ऑल्सो नोन एज द दून. दोनों लॉन्गिट्यूडनल वैली, द फेमस द देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून, दीज आर ऑल द वेल नोन. द दून, दून किसको कहते हैं? व्हाट इज दून? तो कहते हैं कि द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन द लेसर हिमालय. लेसर हिमालय इज नोन एज, लेसर हिमालय किसको कहेंगे? हिमाद्री. हिमाद्री, यस, वेरी गुड, हिमाद्री. और ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय हिमाद्री को कहेंगे. हैं? हेलो, लेसर हिमालय इज ऑल्सो नोन एज द हिमाचल एंड ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय इज द हिमाद्री, लेसर हिमालय इज द हिमाचल एंड आउटर हिमालय इज नोन एज द शिवालिक. तो ग्रेटर द हिमाचल और शिवालिक के बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल वैली रहता है, जो वी शेप का है, वो दून कहलाते हैं. सो देहरादून, देहरादून. दूसरा है आपका, सेकंड क्या है? कोटली दून. कोटली दून. एंड थर्ड कोटली एंड पाटली दून. एंड जस्ट द लॉन्ग. अब देखो कि ये तो रेंज के आधार पर, उसके बाद हम लोग ये रेंज के आधार पर हिमालय को 3 भाग में हम लोग किए हैं. हिमालय का पहला कौन सा किए थे? तो सब पहला था आपका हिमाद्री. सेकंड क्या था? सेकंड आपका था हिमाचल. और थर्ड क्या था? थर्ड आपका था शिवालिक. अब लॉन्गिट्यूडनल वैली, अब लॉन्गिट्यूडनल वैली के डिवीजन से हिमालय को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं. ये जो हिमालय देख रहे हो, ये फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट हो जाते हैं. तो ये हिमालय चूंकि इस तरह से बेटा है, हम ऐसे करके दिखा रहे हैं. ये चूंकि ये अनडुलेटेड फोल्डेड माउंटेन करते हैं. अब वेस्ट टू ईस्ट. अब यहाँ इसको 4 में डिवीजन करेंगे. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 हिमालय है. ये किसके आधार पर? ये होगा रिवर के आधार पर, रिवर के आधार पर, है ना. तो longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region from the west to east. These divisions have been demarcated by the river valley. रिवर वैली. अब तुमको पता होना चाहिए कि हिमालय रिवर में 3 मेजर रिवर बेसिन है. सबसे पहले आपका है इंडस रिवर, उसके बाद दूसरा है ब्रह्मपुत्र है, और तीसरा है गंगा बेसिन, इंडस बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन. Also the tributary of the river Indus, tributary of the river Ganga and tributary of the river Brahmaputra. So demarcate किया गया कि रिवर वैली के
रिवर के आधार पर उसको डिमार्केट किया। तो नंबर 1, सो डिवीजन नंबर 1 कहता है कि द पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज, इंडस एंड सतलज, इंडस मेन रिवर, सतलज इज द ट्रिब्यूटरी है। इंडस और सतलज के बीच का जो एरिया है उसको हम लोग कहते हैं, कौन सा हिमालय कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पंजाब ट्रेडिशनली हिमालय। नोन एज द पंजाब हिमालय, है ना। इंडस टू सतलज एंड सतलज टू काली एंड सतलज टू काली, कुमाऊं हिमालय, काली टू तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता टू, है ना, ध्यान नोनेट आसाम हिमालय। तो लॉन्गिट्यूडनल लेइंग बिटवीन द हिमालय जस्ट डिवाइडेड इनटू डिवीजन के 4 डिवीजन किए हैं, द पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। किसके आधार पर ये डिवीजन क्या, ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, द रिवर basis of region from west to east, and these divisions have been demarcated by the river valley. The Indus and Satluj has been the traditionally known as the Punjab Himalaya, but is also known as and the regionally the Kashmir and the Himachal Himalaya. Okay, ये ट्रेडिशनली है पंजाब हिमालय बोलेंगे, मगर ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का है जो लाइज बिटवीन द इंडस एंड सतलज के बीच की है। लेइंग बिटवीन द सतलज एंड द काली रिवर इज ऑल्सो नोन द कुमाऊं हिमालय, एंड काली टू तीस्ता ऑल्सो नोन एज द नेपाल हिमालय, एंड द अदर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ लेइंग बिटवीन द तीस्ता टू दियांग river known as the Assam Himalaya. So there are regional name also in these the broad categories. Find the some regional name of the Himalayas. The origin of the river Indus and the origin of the river Brahmaputra, both are the lake Mansarovar lake, but one the northwestern part area and the northeastern part. The outer part of the Himalayas, है ना, हिमालय का ऊपरी से ऊपर से वो जिसको हम लोग कहते हैं तसानपो, ये जो दिखा रहे थे, ये हिमालय का ऊपर का जो क्षेत्र है, यहाँ से ये निकल रही है, ये रिवर तसानपो। और जैसे इन द नामचा बलवा द हाईएस्ट पीक ऑफ द पूर्वांचल का 7,758 मीटर एबव द सी लेवल, एंड यू टर्न देन द नोन एज द ब्रह्मपुत्र। उसके पहले ये तसानपो रिवर, तसानपो। सेकेंड द रिवर ये इंडस रिवर है, इंडस, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, इटिश, these are the tributary of the river Indus. तो ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न, यही ईस्टर्न पार्ट, यही मार्क कर रहा है, देखो ये मोस्ट द ईस्टर्न पार्ट नेम द लमचा बरुआ के पास आ गया है ना। दो मोस्ट द बाउंड्री ऑफ द हिमालय, ईस्टर्न मोस्ट इन द पूर्वांचल, द यू शेप में टर्न लेता है, यू शेप में टर्न लिया रिवर नेम। देन उसके पहले उस रिवर का नाम था तसानपो। जैसे ही वो इंडिया में इंटर किया यू शेप में, एंड द बाउंड्री ऑफ द हिमालय बियॉन्ड द धियांग gorge is just developed from the Vishe Valley. The Himalaya band sharply to the south and the spread along the eastern boundary of the India, and this is also known as the Purvanchal. Purvanchal or the eastern hill and the mountain, उसको हम लोग पूर्वांचल भी कहेंगे और ईस्टर्न हिल ऑफ माउंटेन भी कहेंगे। और वहाँ 7 सिस्टर्स भी है,
and these all the hills are running through the eastern states, mostly composed the strong sandstone. वो जितने भी हिल्स हैं, जितने भी ईस्टर्न पूर्वांचल है, उसके जो सैंड्स है, स्टोन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विच आर सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हम लोग कहते हैं लेयर्ड रॉक कहते हैं, एंड कवर विद द डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू द मैक्सिमम द रिसीव द रेनफॉल, है ना, ड्यू टू द गारो खासी और जैंतिया रीजन एरिया, and they are mostly the parallel ranges of valley. So Purvanchal comprises the Patkai Hill, Naga Hill, and Manipur Hill and Mizo Hill. Look at the map, the physical map में आप देखोगे ये सारे. So just the one that draw a outline map of the Himalaya and show the major important range, valley and highest the peak of the eastern boundary, the Namcha Barwa. So today the discuss the one on the Himalaya, the Great Wall of North, the barrier of the North Himalaya. Himalaya just divided the two way. One, the parallel ranges of Himalaya, the three major parallel ranges known as Himadri, Himachal and Shivalik. Inner, Lesser and Outer Himalaya. Second, on the basis of the river valley, the Himalaya just divide the west to east, laying between the Indus to Satluj to Kali to Tista, and Tista to Dihan. So known as traditionally known as is the Punjab Himalaya, Kumaon Himalaya, Nepal Himalaya, and Assam Himalaya. But you know the Himalaya is also the source of natural source. It provides the water and forest wealth. So water and forest wealth. If any question